Hello, here we are with a new lecture of English for Deaf class. The chapter that we have started is Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and this was the first chapter on our book, and we discussed the whole chapter, and while discussing the chapter we discussed the questions as well and the possible answers for the questions that we can provide. So now today we are going to talk about the exercise. Okay, exercise, we discussed the question. This is on page now. The exercise is on page number 6, and we have covered the first part, part A, where there were questions. For example, what is meant by simplicity and humility? Describe in a few sentences the lifestyle of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the light of text that you have read. How can simplicity and humility do away with the culture of extravagance and waste? I've told you, do away with, like, how can we get rid of extravagance and waste. Okay, किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं. Read the last paragraph of lesson Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam with the comprehension, and write down the main idea and supporting details of paragraph. Like after reading, आपने आखिरी पैराग्राफ पढ़ना था और आखिरी पैराग्राफ की रोशनी में आपने ये बताना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी और इंकिसारी के बारे में क्या फरमाया है, और उसके साथ कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स आपने वहाँ से लिखनी थी, वहाँ से भी, और आप पिछले जो चैप्टर हमने पढ़ा है वहाँ से भी आप बात को अपने इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सपोर्ट के लिए. एंड पांचवा सवाल था, हाउ डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज फॉस्टर सिस्टर. एंड इसका भी जवाब हमारे पास पेज नंबर 4 के ऊपर है. पहला पैराग्राफ आपको याद होगा. और हम अब चलते हैं MCQs की तरफ. ठीक है, जहाँ पे आपने कुछ MCQs के जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करने होते हैं, और आपके पास पेपर में जो MCQs आते हैं वो इस तरह के आते हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ पे B है और चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यू विल बी गिवन स्टेटमेंट्स और आपने जो है वहाँ से चूज करना होगा, या फिर जो है चूज ही करना होता है आपको इस तरह से. तो कहते हैं द मैट्रेस on which Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was slept was made of leather stuffed with the fiber of date tree. And this is true. Okay, this is what we read in the book. This shows that he dashed. This show he dashed. अब ये आंसर जो है हम कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ की बुनियाद पे कर सकते हैं? ये हम अब चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद के ऊपर कर सकते हैं कि भाई उन्होंने, उनका जो बिस्तर था वो बेहतरीन नहीं था, वो नर्म नहीं था, वो गर्म नहीं था. वो क्यों नहीं था, किस वजह से नहीं था? क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे? वॉज ही पुअर? वॉज लेट अ सिंपल लाइफ? उन्होंने सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए. कुड नॉट परचेज, खरीद नहीं सकते थे. वॉज प्रोमिनेंट. ठीक है, तो इनमें से कौन सी वजह थी? और देखें, मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ कि किसी भी चैप्टर को समझना, पढ़ना, हर वर्ड को, हर सेंटेंस को, हर आइडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ यू हैव नॉट रेड द टेक्स्ट यू कैन नॉट आंसर, यू कैन नॉट कम विद द राइट ऑप्शन. ओके, एंड यू हैव 20 मार्क्स फॉर दिस. ओके, तो अब हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जी? कि वो आपके पास बुक्स होनी चाहिए. जैसे आपको मैं रोज़ बताता हूँ कि बुक्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती बोर्ड के ऊपर कि हम ये सब कुछ लिख सकें. द मैट्रेस ऑन विच हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was slept was made of leather stuffed with the fiber of date trees. This shows that he was poor? No. Led a simple life? We will think about it. There, and could not purchase? Wrong. Was prominent? No. So what was the reason? He led a simple life. Okay, and how did we come to know about this? He was living a simple life from the text itself. Okay, otherwise we could come up with this because Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not a rich man. Okay, we could go for this option as well, but this is what we have not been told in the text. Okay, what have we got from the text? This, led a simple life. He needed to, or he wanted to live a simple life. Okay, that is why he did not have a good mattress. And the next objective is the word that is opposite in meaning or to affluent is, and the word affluent has been used in the book, in the text. The importance of every word. Do you see? So what is the meaning of affluent? Okay, is it rich, beautiful, well-mannered, or poor? Like, opposite to affluent. Affluent means rich, wealthy.
okay, having too much money. So this cannot be true, because rich is affluent, it is not even beautiful and not even well-mannered. The the poor is the correct option, opposite to affluent. So this was the second objective, and the third one is, according to the text, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Fatima treated each other dash way. Okay? How did they treat each other? Do you remember that? Do you remember? So let's see here. In the same way, an option. In the different way, we can go for that if we have not read the book. Okay? In a simple way, it also sounds an okay option. And in an affluent way, which one is correct? Like every option looks appropriate, but this one is the correct option, because the way Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam greeted Hazrat Fatima used to greet him in the same way. He used to stand him, kiss his hand, and take him where he used to sit. And this is exactly the same thing was practiced by Hazrat Fatima radiallahu anha as well. So this one is these are wrong, and this one is correct. And let's move towards MCQs number 4, and which is the word closest in meaning to impoverished. Close in meaning, not exactly. The close in meaning is what? Impoverished. Okay. So if you have read the text, so you will have no problem with understanding or choosing the right option, because you have read the text, you know the meaning of difficult words, and you know how the word has been used in your text. So without money, impoverished. Without good manners, it's impossibility. Without a good manners, a possibility. Having money, a possibility. And having good health, a possibility. Why we have all these parts or options as possibility? Everyone is possible. Why? Because we have no knowledge of it. Okay, you cannot go to choose the right one until and unless you know the truth, or you know the reality. So this is without money. Okay, this is wrong, and this is also wrong. Okay, impoverished means lack of money. Without money. And let's move towards MCQs number 4. The Rasul. So what is it? Let me read the MCQ for you. According to the text of lesson, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to milk his goat. This shows that, once again, the same MCQ. Okay, you can choose the right option if you have read the text, if you have understood the text. Okay, if you are clear about the message that the writer wanted to deliver to the reader. So what is the right option? So let's try to find it. The Rasul liked the milk of goats. Did he like that? Okay. So, option number B. The Rasul did not like milk of goat by other people. A possibility. Okay. Humility was essential part of Rasul's character. A possibility. The Rasul had no servants. Okay. He had servants. So, but which one is correct? Humility. Like we have been taught about what? Humility and simplicity of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the humility, this is one. Rasul this is wrong. The Rasul sallallahu alaihi wasallam did not like milking other people. This is wrong. Humility was the essential part of Rasul's character. ये उनकी जिंदगी का या उनकी शख्सियत का खासा था. Okay, this was a trait. So this one is correct. Okay, this one is also wrong. So I hope you understand, or you might have got an idea that what kind of MCQs you should expect in your papers. किस तरह के MCQs आपने एक्सपेक्ट करने हैं, इस तरह के MCQs आपके पास आ सकते हैं, जिसमें वैरायटी है. वैरायटी किस तरह से है कि आपके पास जो है वो आइडिया के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे जो है वो किसी डिफिकल्ट वर्ड के बारे में पूछा जा सकता है. तो ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, जो कि अभी तक हमारे पास यहाँ पे सामने आई हैं. आइडिया की, डिफिकल्ट वर्ड की, और कोई एक वर्ड मिस भी किया जा सकता है. तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी. और आगे हमारे पास है जी, चलते हैं हम राइटिंग की तरफ. वोकैबुलरी के बारे में मैं आपको कल जो है वो एक लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड करूँगा. फिर वो आप देखिएगा और तब आपको समझ आएगी हाउ टू यूज डिक्शनरी. सो आज हम बात करते हैं थोड़ी सी पैराग्राफ के बारे में. यू माइट हैव रेड, आपने जो है वो
किताबें पढ़ी हैं, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा होगा, आपके पास किताब सामने पड़ी हुई है, तो आप अगर अपनी किताब खोलें और किताब खोल के यहाँ पर नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखें यहाँ से एक ये पूरा पेज भरा हुआ नहीं है, यहाँ से शुरू हुई है कोई कहानी और यहाँ पर आकर ख़त्म हुई है। इसी तरह से यहाँ पर कोई बात शुरू की गई है और यहाँ पर कोई बात ख़त्म की गई है। मगर ये डिवीज़न जो है वो पेज में क्यों करते हैं, ये चीज़ को या टेक्स्ट को पैराग्राफ में डिवाइड क्यों करते हैं, इसकी क्या रीज़न होती है? ठीक है, ये सवालात हैं और यहाँ पर आपको जो है राइटर ने या एग्जामिनर ने और हमें कहा है कि आप क्या करें जी, राइट अ यूनिफाइड पैराग्राफ ऑन टॉपिक सेंटेंस। आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, मैं अभी आपसे जो बात कर रहा था कि हम पैराग्राफ की किसी पेज के ऊपर लिखी हुई तहरीर को क्यों डिवाइड करते हैं, व्हाई डू वी नीड टू डिवाइड द होल टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स की छोटी सी हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा इस पोजीशन में हम नहीं है कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें। तो पैराग्राफ की हम बात कर सकते हैं कि हर पैराग्राफ में एक अलग टॉपिक को डिस्कस किया जाता है या फिर एक टॉपिक के एक सेगमेंट को जो है वो सब टॉपिक को जो है क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। और ये वाली बात आपको समझ आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास ये होती है कि हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, जिस तरह से हर चैप्टर के आपकी बुक के ऊपर जो है वो टाइटल होता है, वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, ठीक है, तो वो पैराग्राफ में बताता है कि वो बाकी जो है ऐसे किस चीज़ के बारे में है। इसी तरह से हमें जो है स्टार्टिंग सेंटेंस, पहला, दूसरा या तीसरा सेंटेंस पैराग्राफ का हमें ये बताता है कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। और जो सेंटेंस पैराग्राफ में हमें ये बताता है कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, उसको हम बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस। और हर पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होता है और वहीं से रीडर चूज करता है, डिसाइड करता है कि मैं इसको आगे पढूं या इसको ना पढूं, ये मेरे काम का है या ये मेरे काम का नहीं है। तो अब देखिए इन्होंने हमें जो है क्या किया है, टॉपिक सेंटेंस हमें दिया है और कहा है कि इस टॉपिक सेंटेंस के ऊपर आप क्या करें, एक पैराग्राफ लिखें। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। प्राइड मेक्स अस आर्टिफिशियल एंड ह्यूमिलिटी मेक्स अस रियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई, नॉट रियल, झूठा। और ह्यूमिलिटी हमें क्या करती है, वो हमें हकीकी बनाती है, सच्चा बनाती है। बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक वर्ड्स, खास अल्फाज इस्तेमाल करके, विविड वर्ड्स, विविड कहते हैं क्लियर, तो वाज़ेह, ठीक है, मॉडिफायर एंड एडिक्वेट सपोर्टिंग डिटेल्स टू डेवलप द मेन आइडिया। और आप जो बात कर रहे हैं वो सपोर्टिंग डिटेल के साथ हो। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें तो आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस कोट कर सकते हैं, कोई कहानी छोटी सी कोई और ऐड कर सकते हैं, किसी की कही हुई कोई बात ऐड कर सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में कोई इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, ये सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं किस चीज़ के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए कि ये वाली बात जो है, प्राइड मेक्स अस आर्टिफिशियल एंड ह्यूमिलिटी मेक्स अस रियल। ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है और ये इसके साथ क्या है, ये बिल्कुल अलग नहीं है। ये हमारे पास पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है और इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके लिए लिखा है। और टॉपिक सेंटेंस खुद लिखना जो है ये एक आर्ट है और ये आप जो है वो रिपीटेडली प्रैक्टिस के ज़रिए ही आप सीख सकते हैं। एक अच्छा बेहतरीन टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो रीडर को कन्विंस करता है कि वो इस पैराग्राफ को पढ़े कर आगे जाए। तो हम ज़रा देखते हैं इसको, ज़रा देखें, इस चीज़ में कुछ चीज़ें नोट कर लेंगी हैं। Pride makes us artificial and humility makes us real. This is the topic sentence. It tells us that what is the paragraph about. आगे कहते हैं proud people have, और इसको हम proud people भी कह सकते हैं, proud people have to do many things to show off, खुद को दिखाने के लिए, to show off के लिए करते हैं। They want to show that they are up to date. वो अप टू डेट है, ठीक है। They want to show, देखिए अप टू डेट एंड सोफिस्टिकेटेड। देखें ये वाली बात, इसी चीज को अब देखें, इसके दो हिस्से हैं, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। अब इस पैराग्राफ को हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप दोनों को, ये देखिए टॉपिक ए है, ये टॉपिक बी है, तो आप टॉपिक ए का एक सेंटेंस लिखें, फिर आप मिसाल के तौर पर जैसे ये टॉपिक ए का सेंटेंस लिखें, फिर टॉपिक बी का लिखें, फिर ए का लिखें, फिर बी का लिखें, और ऐसे जाकर आप जो है वो कंक्लूजन तक पहुंच जाए, ठीक है। इसको पैराग्राफ ऑफ कंपैरिजन हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप आने वाली क्लासेस में इस चीज़ को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, मगर ये है कि यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा जो है वो सरसरी आइडिया हो कि पैराग्राफ क्या चीज़ होती है।
They want to show that they are up to date and sophisticated. देखें अब ये जुमला है they are up to sophisticated. अब ये जुमला है तो इस जुमले का इस जुमले के साथ ताल्लुक है, ठीक है। और इसी तरह से अब इस जुमले को देखते हैं, to implant this fake image of themselves in the mind of people around mostly they have to go against their own will. अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये सेंटेंस जो है ये इसके साथ भी क्या करता है, रिलेट करता है। यानी नेक्स्ट आइडिया जो है वो क्या करता है, उसके साथ भी रिलेट करता है। समझ आ गई आपको? ये ऐसे तो यानी ये नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो क्या है, बिल्कुल पिछले के साथ क्या है, रिलेटेड है। यानी इसमें क्या है, एक रब्त है। यानी ऐसा नहीं है कि एक आपने बात कर दी, अगली बात जो टूटी हुई उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पहले ये बात हुई, फिर उसके सपोर्ट में ये बात हुई, और फिर इसके सपोर्ट में आगे हमने ये बात कर ली, ठीक है। इन द माइंड ऑफ द पीपल आर मोस्टली दे हैव टू गो अगेंस्ट देयर ओन विल, दे स्पेंड मच ऑफ देयर एनर्जीज इन प्रिटेंडिंग। और अब ये देखें, इसी बात को लेकर हम लेके गए क्या आइडिया को अगले सेंटेंस में लेके गए। यानी हमने कोई नई बात नहीं की, कोई नया टॉपिक नहीं छड़ा। हमने ये नहीं कहा कि जो है वो इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, उसके इससे लेना देना कुछ नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी एंड सिंपलिसिटी। और हर सेंटेंस जो है वो पिछले सेंटेंस को सपोर्ट करता है। दे स्पेंड में ये हो गया, यहाँ पे दे मस्ट स्पेंड मच ऑफ देयर एनर्जीज इन प्रिटेंडिंग, दिस क्वालिटी ऑफ देम मेक देम फेक एंड टेक देम अवे फ्रॉम रियलिटी। और फिर आगे देखें, यही आइडिया जो है उठ के इस सेंटेंस में आ जाता है, अगले सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हर नई आने वाली स्टेटमेंट जो है वो पिछली स्टेटमेंट को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, बेक कर रही है, और उसमें एक कनेक्शन है, ठीक है। फिर आगे देखें, the far from reality on the other hand। अब ये देखो, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ड्स आ जाते हैं, फ्रेजेस आ जाती हैं। ये क्या करते हैं, हम एक आइडिया को, ये टॉपिक ए था और अब यहाँ से हम टॉपिक बी स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो है वो दो तरीके होते हैं, एक ए जिसमें हम टॉपिक ए और फिर टॉपिक बी, टॉपिक ए और टॉपिक बी का सेंटेंस करते हैं। दूसरा ये है कि आप टॉपिक ए को क्लियर करते हैं, फिर टॉपिक बी पे जाते हैं और फिर कंक्लूजन दे देते हैं। तो ये वाला जो तरीका अपनाया गया है वो दूसरे वाला तरीका है, जिसमें आप टॉपिक ए को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फिर टॉपिक बी की तरफ जाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, और फिर एंड में आप उसको क्या कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं। तो अब देखें यहाँ पे, दिस क्वालिटी ऑन द अदर हैंड, पीपल हु आर हम्बल डू नॉट हैव टू फेस दीज चैलेंजेस। और इसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपर किया है, इसमें आप मजीद अपनी बातें कुछ ऐड कर सकते हैं, और एंड पर आप अपनी कंक्लूजन दे सकते हैं कि अब जिस तरह से आपकी अपनी फाइंडिंग है, आपकी रिसर्च की जो फाइंडिंग है, किस तरह से आप रीडर को कन्विंस करते हैं कि जो आपने बात शुरू में कही क्या वो सही थी या गलत थी। उम्मीद है आपको थोड़ी इस चीज़ की समझ आई होगी। ये थोड़ी सी एग्जांपल है, और यहाँ तक तो जो लिखा गया है इसमें आप मज़ीद चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। एक पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये एक सवाल है, और पैराग्राफ की लेंथ जो है वो आपकी 5 से 12-13 तक जो है सेंटेंसेस तक का जो है वो आपका पैराग्राफ जा सकता है। इससे लंबे लंबे पैराग्राफ भी होते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, मगर ये है कि इस लेवल के ऊपर अगर आप 8 से 10 सेंटेंसेस का पैराग्राफ लिखें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मगर उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आपका टॉपिक सेंटेंस हो, फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस हो, फिर अगर टॉपिक बी कंपैरिजन वाला है तो फिर आप जो है टॉपिक बी हो, और फिर एंड के ऊपर आपने कंक्लूजन दिया हुआ हो, क्योंकि एक पैराग्राफ जो होता है वो एक ऐसे का बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आई होगी। आप खुद से कोई और टॉपिक सेंटेंस बनाइएगा और उसके ऊपर जो है वो एक पैराग्राफ लिखिएगा, बल्कि इसी के ऊपर जो है इससे मुख्तलिफ जो मैंने लिखा है इससे मुख्तलिफ करके आप अपना भी कुछ लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा हाफ़िज़।